Okay, so yesterday we have discussed introduction of quantum mechanics. Hmm? There were two types of mechanics in physics: classical mechanics and quantum mechanics. Classical mechanics means the old way of thinking, and quantum mechanics means the modern way of thinking about the problems of physics. Right? The quantum mechanics is more concentrated around the mathematics, right? So how we deal with any physical problem, we have a model to find some probabilistic result. So there are some probabilities of many results of a single problem. So this is a probabilistic approach. Hmm? So introduction section में we have dealt with the problems in old era or classical mechanics that lead us to the quantum mechanics. ठीक है? Now we can focus on elementary principles on which the quantum mechanics is based on. Those principles are the dual nature of matter. It was given by D. Broglie. Then Heisenberg's uncertainty principle, and then finally the equation of motion, by Schrödinger, or it is known as Schrödinger's equation, right? So this Schrödinger equation is the most important principle by which we can find a mathematical expression for any system. The information about that physical system is contained in that mathematical function, right? And that function is known as wave function. Okay, तो अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग्स हाइपोथेसिस, इनके बारे में बात करते हैं. अच्छा, we have already talked about classical mechanics, that classical mechanics separates two different regimes: particle and wave. There is a single particle, there is no wave nature in that particle, and in the wave, that wave is in every respect different than the particle, right? Or for any particle we have some number of properties that will define the state of that particle. और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? द एग्जैक्ट पोजिशन, एग्जैक्ट एनर्जी, एग्जैक्ट वेलोसिटी और द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसकी करंट स्टेट हमें पता है, देन वी कैन प्रिडिक्ट इट्स स्टेट आफ्टर सम टाइम. स्टेट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पार्टिकल कहाँ पहुंच गया होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, एंड एक फिक्स टाइम के बाद उसी टाइम पर उसकी स्पीड क्या होगी, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और किस स्पीड से मूव कर रहा होगा. वी कैन एग्जैक्टली टेल इन क्लासिकल मैकेनिक्स यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में वी कैन नॉट टेल, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ वेव. ठीक, ऐसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर. और ड्यूअल नेचर कैसे डिफाइन करें? तो डी ब्रॉगली ने बोला, अगर कोई एक पार्टिकल है, the mass of that particle is m and it is moving with velocity v, then momentum is defined by Newton like mass multiplied by the velocity. Correct? तो मोमेंटम के बारे में तुम लोगों ने सुना था पहले या नहीं? सर सुन रखा है. हाँ, चलो. तो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड बाय मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी m into v. तो अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, या और उसका मोमेंटम अगर सिंपली m into v है, जिसे p से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन डी ब्रॉगली डिफाइंड और डी ब्रॉगली suggested that the wavelength of that particle will be given by lambda equal to h upon p. P is the momentum of that particle, and he said that a wave will be associated always with a moving particle. अगर एक पार्टिकल मूवमेंट में है, वो मोशन कर रहा है, देन उसके साथ एक वेव हमेशा होगी. ठीक है? तो अगर और वो वेव है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो अगर वो वेव एसोसिएटेड है किसी एक सिंगल पार्टिकल के साथ, then the lambda will be given by h upon p. P is the momentum of that particle and h is Planck's constant. ठीक है?
और अगर हमारे पास कोई वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, then that wave will represent a particle. The momentum of that particle will be p equal to h upon lambda. ठीक है, तो इस तरह से एक वेव के साथ एक पार्टिकल प्रॉपर्टी हमेशा रहती है और एक पार्टिकल के साथ एक वेव प्रॉपर्टी हमेशा रहती है। ये अलग बात है कि वो दिखती है या नहीं दिखती है। अगर एक मैसिव पार्टिकल होगा जो विजिबल होगा या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा तो उसकी वेव नेचर इतनी कम होगी कि वेवलेंथ बहुत छोटी रह जाएगी और हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है, उसका मास बहुत कम है, इतना कम कि मोमेंटम उसका बहुत छोटा रह जाए, देन लैम्डा विल बी अप्रिशिएबल और वो लैम्डा मेजरमेंट में भी आ सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में भी लैम्डा होगा लेकिन वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हम देखेंगे, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी किसके क्यों नहीं मेजर कर पाएंगे और किसका लैम्डा मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है कि देयर इज अ वेव नेचर एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। ठीक है, ये जो वेव्स हैं उन वेव्स को बोलते हैं मैटर वेव, क्योंकि और कोई वर्ड है ही नहीं। या तो हमारे पास पार्टिकल का वर्ड है या फिर वेव वर्ड है, और कोई वर्ड नहीं था लैंग्वेज में। उन वेव्स को बोला गया मैटर वेव। इनफैक्ट वेव एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा लीनियरली तो वो वाइब्रेट करता हुआ मूव करेगा, नो। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज को हमें एक्सप्लेन करना है तो हम उन प्रॉपर्टीज को उस वेव के फॉर्म में वेव मानकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये माने कि उस पार्टिकल के साथ इस लैम्डा वाली एक वेव है और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, देन वी कैन एग्जैक्टली डिफाइन दोज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये रियल वेव्स नहीं है, ऐसी वेव नहीं है जो हमें दिखाई देंगी ये वाइब्रेट करता हुआ पार्टिकल जाएगा, नो। सो दीज आर द मॉडल। ठीक है, इन वेव्स को बोलते हैं मैटर वेव। ठीक है, उस तरह की वेव नहीं है जो मैकेनिकल वेव हुआ करती थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ करती थी, नो। ठीक है, सो दीज आर द मैटर वेव्स। ठीक है, और इस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल। ठीक है, तो चलो फोटोन के लिए हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कैसे आया। ठीक है, अच्छा, एक फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कैसे दी जाती है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन? कोई बताएगा? h nu, एग्जैक्टली। तो E इक्वल टू h nu फॉर ए फोटोन। और अगर उन्होंने पहले बोल दिया था अगर वेव है तो उसके साथ एक पार्टिकल एसोसिएटेड होगा, और सपोज दैट पार्टिकल हैज अ मास ऑफ m, ठीक, देन उसकी एनर्जी कैसे दी जाएगी? mc²। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आई थिंक, mc², रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, आइंस्टीन इक्वेशन। यस यस। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन कैन बी गिवन इन टू वेज, h nu एंड mc²। वी कैन इक्वेट दीज टू। ठीक है, इक्वेट अगर करें तो न्यू को लिखा जा सकता है c बाय लैम्डा। ठीक है, एंड c और c दोनों कैंसिल हो सकते हैं। देन वी कैन फाइंड lambda equal to h upon m into c. C is the velocity of that particle. Mass into velocity is momentum. So m into c is p. So lambda will be h upon p for a photon. ठीक है, सो ये तरीका है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाँ लैम्डा और एच और पी में क्या रिलेशन है। एक एग्जांपल देखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यही निकालने की कोशिश करते हैं। एक क्रिकेट बॉल का मास कितना होता है? लगभग 150 ग्राम के आसपास होता है, 160-165 ग्राम के आसपास होता है। ठीक, टिपिकल वेलोसिटी उसकी 150 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। ठीक है, और अगर मास अब हमारे पास है, वेलोसिटी भी, स्पीड भी हमारे पास है, मोमेंटम निकल आएगा और एच में डिवाइड अगर करें तो लैम्डा जो आता है वो आता है 0.98, चलो इसे 1 मान लेते हैं, 10 टू द पावर -34 मीटर। 10 टू द पावर -34 मीटर। ठीक, 10⁻⁹ होते हैं नैनोमीटर। ठीक, उसके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स की रिक्वायरमेंट होती है। 10⁻34 मीटर, इस वेवलेंथ को वी कैन नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, तो और ये बॉल कैसी है? बॉल इज अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। चलो, एक इलेक्ट्रॉन जिसे स्पीड वेलोसिटी प्रोवाइड कराई गई बाय पुटिंग इट इन अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, और उसकी वेवलेंथ निकलती है 1.2 नैनोमीटर। ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसे अभी देखेंगे, अभी ड्राइव करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और इस वेवलेंथ को आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, TEM से, SEM से। ठीक है, तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे रोक के पूछ लेना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, यही वाला जो एक्सप्रेशन था इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो V पोटेंशियल में पुट किया गया है, तब उस V पोटेंशियल में पुट करने पे क्या होगा? अगर हम E इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को पुट करते हैं, देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। और अगर किसी पोटेंशियल V में पुट करते हैं तो क्या होता है? फोर्स तो लगता है, लेकिन V से हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की, एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, देन एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन अ पोटेंशियल V is given by small e. Small e is the charge of that electron multiplied by the potential V. तो ये है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को मास और वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल है ये, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। ठीक है, तो अगर इसे हाफ mv स्क्वायर पुट कर दिया जाए, और हाफ mv स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m, वेयर p इज मास मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है, m स्क्वायर v स्क्वायर, मास का मल्टीप्लाई कर लिया अपने, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में आ गई। तो आगे से हम जब भी काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे तो उसे हम p स्क्वायर बाय 2m लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि मोमेंटम के टर्म में लिख सकें, ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें दो दो इंफॉर्मेशन होती हैं, मास की भी और स्पीड की भी। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल की हेल्प से फाइंड करें तो वो है EV, और मोमेंटम की हेल्प से फाइंड करें तो देन दैट इज p स्क्वायर बाय 2m। सही है, और इसकी हेल्प से हम मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली दिस, p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me इंटू v। ठीक है, और इस E इंटू वी को काइनेटिक एनर्जी सिंपली डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने किया क्योंकि हम लैम्डा निकालना चाहते हैं, और लैम्डा होता है h अपॉन p। ठीक है, तो सिंपली p की वैल्यू अगर पुट कर दें यहाँ पर, देन वी गेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2mev. m is the mass of electron, E is the electronic charge, and V is the potential in which we are putting that electron. ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इन दोनों की वैल्यूज को पुट किया जा सकता है, एंड देन वी गेट इट दिस थिंग, lambda इक्वल टू 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द पोटेंशियल वैल्यू नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में हमारे पास वेवलेंथ आ जाती है किसी एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन की लैम्डा निकालना होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी होती है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये केवल स्लो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हैं, जो ज्यादा तेज नहीं चल रहे हैं। ज्यादा तेज का मतलब उनकी स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड नहीं है। रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब लाइट की स्पीड से बहुत कम है जिनकी स्पीड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास पहुंचती है, बस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और हम फिलहाल उसकी बात करने वाले नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, इज दैट क्लियर? इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, h अपॉन p का यूज कर सकते हो, और 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v नैनोमीटर, इसका यूज कर सकते हो। सर हाँ सर हमने फोटोन के लिए तो लाइट की स्पीड से ही निकाली थी, हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हम्म। और सर इलेक्ट्रॉन के लिए आपने बताया कि यूज नहीं कर सकते हम बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नहीं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, कुछ और भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें होता ये है, रिलेटिविस्टिक मूवमेंट जब होता है किसी भी पार्टिकल का, तो उसका मास भी कांस्टेंट नहीं रहता, मास भी चेंज होने लगता है, इनफैक्ट मास इंक्रीज करने लगता है। और यहाँ पर तो हमने मास को फिक्स ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि इस मास की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो लैम्डा थोड़ा और कम हो जाएगा। तो हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा कि मास में कितना चेंज हो रहा है रिलेटिविस्टिक स्पीड तक पहुंचने पर, इसलिए थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, इसमें कुछ फैक्टर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और सर हमने
डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन के लिए निकाली थी वो, हम्म। उसको हम इलेक्ट्रॉन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमने एक्चुअली वो निकाली नहीं थी, हमने तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक वे निकाला था कि हाँ ये होता है आपस में इक्वल। ठीक है। डी ब्रॉगली ने तो हाइपोथेसिस दी थी डायरेक्टली, डी ब्रॉगली ने तो कुछ और तरीके से लैम्डा और एच और पी इनमें रिलेशन बताया था। तो इसीलिए दिस इज अ प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज अ प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल को हम बाय चांस फैक्ट्स के हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है फॉर एवरीथिंग, फॉर फोटॉन्स, फॉर वेव्स, फॉर पार्टिकल, लाइट पार्टिकल और हैवी पार्टिकल, सब के लिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी ही होता है। ठीक है। ये हमने केवल अपनी हेल्प के लिए एक वे निकाला है जिससे कि हमें पता पड़ सके, हाँ भूल जाए तो ठीक है, हाँ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होगा, कभी कभी भरोसा नहीं होता ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए निकाला है बस ये। और ये फोटोन की हेल्प के लिए निकाला है, इसका मतलब ये नहीं ये फोटोन के लिए ही ट्रू है, ये सब के लिए ट्रू है। आगे भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी निकालने वाले हैं जो वास्तव में प्रिंसिपल थे। ठीक है। जिन्हें डिराइव नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं किसी एक चीज के लिए, सबके लिए डिराइव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स, तो इसे हम डिराइव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, दिस इज ए प्रिंसिपल। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम दो तीन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो जो डिराइवेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं डिराइव करने की किसी के लिए। और ऐसा नहीं है वो सब किसी भी चीज के लिए, जैसे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी अगर हम चाहें कि पार्टिकल के लिए डिराइव करने की कोशिश करें, वी कैन नॉट। ठीक है। तो ये सबके लिए डिराइवेबल नहीं है, और ये एक प्रिंसिपल है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है। सर आप यहाँ पे रेस्ट मास की बात कर रहे थे जब बहुत तेज स्पीड होगी, तो रेस्ट मास। हाँ रेस्ट मास, दिस मास, ये वाला जो मास है ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और किसी स्पीड पर जो मास है वो रेस्ट मास से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। उसमें डिवाइड हो जाता ओके है अंडर सर। रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का। ठीक है। यस सर, यस तो सर। बस इसलिए मास क्योंकि बढ़ जाता है तो इसलिए लैम्डा भी चेंज हो जाता है, और इसीलिए बोला गया कि ये स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही है। हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके सर। चलो अच्छा, हाँ अगर इंटरेस्ट हो तो जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें उसे एक्सप्लेन किया गया है, तो चाहो तो उसमें देख सकते हैं। अच्छा फिर तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अच्छा कुछ और एस्टिमेट्स की बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो लाइट की 1% स्पीड से मूव कर रहा है, 1% स्पीड, ये रिलेटिविस्टिक इससे ज्यादा हो जाएगी तो रिलेटिविस्टिक स्पीड बोलेंगे हम इसे। ठीक है। तब उसका वेवलेंथ होता है, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है 2.4 एंगस्ट्रॉम, 0.24 नैनोमीटर। ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट के पोटेंशियल में पुट किया गया है और तब वो मूव कर रहा है, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 1.22 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये कुछ एस्टिमेट्स हैं बस ध्यान रखने के लिए, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा अब बात करते हैं एक एक करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स की, डी ब्रॉगली वेव की या ड्यूअल नेचर की प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज शॉर्टर फॉर लार्जर मास पार्टिकल, सीधी सी बात है, मास बढ़ेगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, एच अपॉन एम वी है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हुई। अच्छा ये पायलट वेव्स हैं, पायलट वेव कहने का मतलब ये है ये पार्टिकल को गाइड करती हैं, पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा, कहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है। वो गाइड किया जाता है डी ब्रॉगली वेव्स के थ्रू। कैसे किया जाता है वो हमें देखना है अभी। ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं डी ब्रॉगली वेव्स की हेल्प से। ठीक है। अच्छा देन ये ना तो मैकेनिकल वेव है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अभी पहले जैसे बोला। ठीक है। और इसीलिए इन्हें मैटर वेव्स बोला जाता है। ठीक है। इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। ये केवल एक मॉडल है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज और रिजल्ट ऑफ द मैटर। ठीक है। ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, इसका मतलब ये रियल वेव्स नहीं है, ये केवल एक मैथमेटिकल मॉडल है। देन ये प्रोबेबिलिटी वेव भी बोला जाता है इन्हें। प्रोबेबिलिटी वेव का मतलब है जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेव ज्यादा है वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी किसी पार्टिकल के फाइंड होने की, और जहां पर पार्टिकल नहीं है वहां पे इन डी ब्रॉगली वेव्स की एम्पलीट्यूड भी कम होगा। ठीक है। क्योंकि पार्टिकल सीधी सी बात है कहीं हर जगह तो होगा नहीं, स्पेस में कहीं किसी एक ही पॉइंट पर हो सकता है, लेकिन वेव्स तो ऐसा होता नहीं, एक वेव तो कोई वेव किसी एक जगह पे ना होके हर जगह होती है, वो तो जहाँ पे मूव करती है। तो अब उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए ये बोला गया
कि जहां पर पार्टिकल होता है वहां पे इन डी ब्रॉगली वेव्स की का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, और जहां पार्टिकल नहीं होता वहां इनका एम्पलीट्यूड कम होता है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, जहां पर भी ज्यादा होगा वहां पे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पेस इज मोर। ठीक है, चलो। और अब कोई भी मैटर वेव या फिर कोई भी डी ब्रॉगली वेव सिंगल नहीं होती। सिंगल डी ब्रॉगली वेव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब भी कोई वेव कहीं पर होगी किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड, वो ग्रुप ऑफ वेव्स होंगी, एक से ज्यादा वेव्स होंगी, नंबर ऑफ वेव्स, और सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा उनके वेवलेंथ्स में, या फिर वेव नंबर में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, और इस तरह से वो सब मिलकर एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंगल वेव रिप्रेजेंट नहीं करती। क्यों? वो अगले वाले प्रिंसिपल में आएगा कि ऐसा क्यों, एक पार्टिकल को एक सिंगल डी ब्रॉगली वेव रिप्रेजेंट क्यों नहीं करती। ठीक है, अच्छा, जो वेलोसिटी होती है उस पार्टिकल की, वो सारे ग्रुप से का इंटरफेरेंस होकर जो फाइनल वेव बनती है उस वेव की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, जिसे कि ग्रुप वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो जब एक से ज्यादा वेव्स होंगी जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा तो उनमें इंटरफेरेंस भी होगा। ठीक है, और इंटरफेरेंस होने पर जो शेप मिलती है उस वेव की, दैट शेप इज नोन एज ग्रुप, वेव ग्रुप। और उस वेव ग्रुप को बोलते हैं द वेव ग्रुप रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल। और उसका जो भी साइज है उस साइज में कहीं भी पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए ना प्रोबेबिलिस्टिक वेव भी बोलते हैं, और इसी पे डिपेंड है क्वांटम मैकेनिक्स, और इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स को बोलते हैं दिस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ये माइंड में पहुंच तो आसानी से जाएगा, लेकिन समझने में थोड़ी सी देर लग सकती है, इसलिए इस पे आराम से अच्छे से सोचना और तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, एक वेव के साथ, एक पार्टिकल के साथ वेव आ गई, और वेव को एक्सप्लेन करके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ट्रुथनेस का क्राइटेरिया केवल ये है कि अगर इनसे रिजल्ट जो भी निकला, ऑब्जर्व रिजल्ट भी वही है, तो इसका मतलब हमने जो भी सोचा है सही है। तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है वो ठीक है, और वास्तव में ऐसा अब तक ऐसा ही हुआ है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व ना किया जा सकता हो। सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ें। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। दैट नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और ये बोलता है कि जब हम किसी पार्टिकल के मोमेंटम और उसके पोजीशन दोनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विद इनफाइनाइट एक्यूरेसी। मतलब एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ। अगर हम ये कहें कि केवल मोमेंटम को एग्जैक्टली बता दो, हाँ वी कैन टेल, लेकिन जैसे ही हम ऐसा करते हैं हम उसके पोजीशन को अनसर्टेन कर देते हैं। हम अगर मोमेंटम को ज्यादा सर्टेनिटी से ऑब्जर्व करेंगे तो पोजीशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और पोजीशन को इनफाइनाइट सर्टेनिटी से ऑब्जर्व करेंगे तो मोमेंटम को नहीं कर सकते किसी एक ही डायरेक्शन की। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में ये पार्टिकल किस पोजीशन पे है, और एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे मोमेंटम एग्जैक्ट क्या है, वी कैन नॉट टेल। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो कितनी सर्टेनिटी से बताया जा सकता है? सो वी से दैट अगर अनसर्टेनिटीज इन मोमेंटम एंड इन पोजीशन are represented by delta px and delta x, then the multiplication of these two uncertainties cannot be less than h bar. h bar means h upon 2 pi. कहीं कहीं इसे h bar by 2 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी अनसर्टेनिटीज हैं पोजीशन की और मोमेंटम की, प्रोवाइडेड कि वो एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उनकी अनसर्टेनिटीज का मल्टीप्लाई h बार से कम नहीं हो सकता, ज्यादा बेशक हो सकता है, ज्यादा चाहे जितना हो सकता है। ठीक है, कम नहीं हो सकता का मतलब अगर किसी एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ने लगेगा। ठीक है, डेल्टा पी एक्स को कम करने की कोशिश करेंगे तो डेल्टा एक्स बढ़ने लगेगा, डेल्टा एक्स को कम करने की कोशिश करेंगे तो डेल्टा पी एक्स बढ़ने लगेगा। ठीक, और ये प्रिंसिपल केवल पोजीशन और मोमेंटम के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारे पेयर्स हैं जिनके लिए ये एप्लीकेबल है, जैसे एनर्जी एंड टाइम। ठीक, एनर्जी और टाइम दोनों को इनफाइनाइट सर्टेनिटी से एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता।
ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एग्जैक्ट कितनी एनर्जी है वी कैन नॉट टेल। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब अगर ऐसा है तो एक पार्टिकल था और पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एच अपॉन पी, लेकिन पी को तो हम अनसर्टेन, पी में तो अनसर्टेनिटी है, हम पी को तो एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा को भी सर्टेनिटी से नहीं बता सकते, लैम्डा में भी एक स्प्रेड होगा, जितना भी स्प्रेड पी में होगा उसी के अकॉर्डिंग लैम्डा में भी स्प्रेड आ जाएगा। अब एक बात और करते हैं कुछ पेयर्स की जिनके लिए ये एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर हम एक्स एक्सेस की बात करें तो डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई एस बार से ज्यादा होगा, लेकिन डेल्टा पी वाई और डेल्टा एक्स की बात करें, जिस डायरेक्शन में हम पोजीशन की बात कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम को मेजर कर रहे हैं, वो दोनों डिफरेंट हो, then yes, we can tell with infinite certainty both of them। और हुआ क्या होगा, डेल्टा पी वाई को तो इनफाइनाइट सर्टेनिटी से मेजर कर लिया होगा, लेकिन डेल्टा वाई में अनसर्टेनिटी बढ़ गई होगी, और इसी तरह से डेल्टा एक्स को कर लिया होगा, डेल्टा पी एक्स इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ गई होगी, लेकिन हमें हमारा तो मोटो ही नहीं था उन्हें मेजर करना, हमारा तो मोटो था डेल्टा पी वाई और डेल्टा एक्स को मेजर करना। तो यस, डेल्टा पी वाई, डेल्टा एक्स, इसी तरह से डेल्टा पी जेड और डेल्टा एक्स, इन्हें मेजर किया जा सकता है अलग अलग, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। किस किस का नहीं होगा 0, डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ऐसे डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई एंड डेल्टा पी जेड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा जेड, these can always be greater than h bar। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा ई और डेल्टा टी इनका भी। ठीक है सर, इसका रीजन दोबारा समझाना जरा। हाँ, देखो प्रिंसिपल ने ये बोला था कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम और पोजीशन इन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अलग बात है, इनका रीजन एग्जैक्टली रीजन नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए कहा जाता है दिस इज द रूल ऑफ नेचर। ये ऐसा नहीं है कि हम वी आर अनेबल टू मेजर, या फिर हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे कि हम मेजर कर पाए पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। ये नेचर का रूल है कि ये दोनों एग्जैक्ट होते ही नहीं है। ठीक है, क्या कि एक्स एक्सिस, अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इन दोनों को इनफाइनाइट सर्टेनिटी से मेजर नहीं कर सकते, या फिर इनमें जो स्प्रेड होगा उस स्प्रेड को दोनों को एक साथ 0 नहीं कर सकते। दोनों में जो भी स्प्रेड्स होंगे उन स्प्रेड्स का मल्टीप्लाई एच बार से हमेशा ज्यादा रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन डिफरेंट होंगी दोनों की तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स, डेल्टा पी वाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा पी जेड और डेल्टा जेड केवल इनके लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल है ये रूल। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ आ और गया। ये जो रूल्स, ये जो पेयर्स हैं जिनके लिए एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल, दोज पेयर्स आर नोन एज कॉन्जुगेट पेयर्स। तो इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर कॉन्जुगेट पेयर्स ओनली। और कॉन्जुगेट पेयर जब भी कहीं आता है तो उसका मतलब यही होता है जिनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो डेल्टा ये पी एक्स और एक्स, पी वाई और वाई, पी जेड और जेड, ई एंड टी, ये दीज आर द कॉन्जुगेट पेयर्स। क्लियर? अच्छा, सर हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते नहीं बता सकते, ऑर्बिट में? नहीं बता सकते, और यही रीजन है, अच्छा हुआ तुमने पूछा अभी, यही रीजन है जिससे कि कुछ लेबल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव रिवॉल्व करता है, कुछ लेबल्स का टाइम पीरियड ज्यादा होता है, मिली सेकेंड्स तक होता है, और कुछ का नैनो सेकंड से भी कम होता है। देखा था ना लेजर के केस में, लेजर के केस में यस मैं सर। ये देखा था, स्पॉन्टेनियसली इमिशन के लिए 10⁻⁹ 10⁻10 सेकंड तक रुककर तुरंत वापस आएगा, लेकिन हम फिर भी कुछ मेटास्टेबल स्टेट्स बना सकते हैं। मैं तब वेट करता रहा 2 दिन कि शायद कोई पूछे कि मेटास्टेबल स्टेट में टाइम ज्यादा क्यों हो गया, बाई चांस किसी ने पूछा नहीं। ऐसा, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो मैंने जल्दी बताया, जल्दी जल्दी बोला हो तो तुम्हें टाइम ना मिला हो सोचने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग थक गए हो पढ़ते पढ़ते कुछ भी हो सकता है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटास्टेबल स्टेट आई कहाँ से, टाइम ज्यादा कैसे हो गया, हमने तो हमेशा पढ़ा था 0.1 नैनो सेकंड होता है। उसका रीजन यही है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर जो पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते का मतलब है कि जो रिवॉल्विंग पाथ है इलेक्ट्रॉन का किसी न्यूक्लियस के चारों ओर,
वो शार्प नहीं है, इनफाइनेटली शार्प नहीं है, उसमें स्प्रेड है, वो थोड़ा चौड़ा है, उसमें विथ है कुछ। अगर विथ ज्यादा होगी, ज्यादा विथ का मतलब डेल्टा ई ज्यादा है, विथ अगर कम होगी, नैरो नैरो होगा वो पाथ, तो मतलब डेल्टा ई कम है। और यहाँ देखो जरा, डेल्टा ई अगर ज्यादा है तो डेल्टा टी कम हो जाएगा, डेल्टा ई कम है तो डेल्टा टी बढ़ जाएगा। तो जो वो मेटास्टेबल स्टेट्स थी, वो वही स्टेट्स थी जिनके लिए डेल्टा ई बहुत कम था, इसीलिए डेल्टा टी बढ़ गया, वहां पे रेस्ट टाइम बढ़ गया। ठीक है। और भी अगर क्वांटम मैकेनिक्स को रिग्रेसली तुम पढ़ो तो तुम्हें ये भी पता पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जिन रिवॉल्विंग पाथ की हम बात करते हैं वो होता ही नहीं है, ऐसा कुछ इस तरह का कुछ नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात की जाती है जनरली, और इसीलिए तुमने जो देखा होगा एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, एसपीडीएफ के बारे में पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, तो एसपीडीएफ के बारे में जब पढ़ा होगा तो उनकी शेप के बारे में भी पढ़ा होगा, कुछ डम्बल शेप होती है, हाँ, कुछ सर्कुलर वो स्फेरिकल शेप होती है, ये भी पढ़ा है। यस सर। हाँ, तो यस वो सर। कहाँ से आई, डम्बल शेप कहाँ से आई? सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, सर वो तो श्रोडिंगर इक्वेशन से आती है। एग्जैक्टली, श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हो इसका मतलब तुमने? हाँ सर। अरे यार, तो मैं यस वैसे ही सर। फालतू में इतना टाइम बर्बाद कर रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकता हूँ इसका मतलब। नहीं सर, आराम से करो। अच्छा चलो ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था क्वांटम मैकेनिक्स तुमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि 10+2 तक मैंने तो नहीं पढ़ी थी। ओके, तो मेटास्टेबल स्टेट का रीजन समझ में आया कि डेल्टा ई उनके लिए बहुत कम होता है। और तुमने जो फिगर्स भी देखे थे वहां पर भी, जहां पर भी मेटास्टेबल स्टेट बनाई गई थी, जैसे रूबी लेजर में बनाई थी, तो मेटास्टेबल स्टेट नैरो थी, और सिंपल जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट्स थी वो वाइड थी, वाइड बैंड थी वो। ठीक है, इसीलिए। अच्छा चलो, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ही ली है, इनसे क्या प्रिडिक्शंस हुई? इनसे प्रिडिक्शंस ये हुई कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था जिसने ये प्रूव किया कि फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो इसी से प्रूव हुआ ये। अच्छा, और अभी अभी जो बात कर ली मेटास्टेबल स्टेट की, वो भी इसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से ही हम बता पाए। अगर क्वांटम मैकेनिक्स नहीं होती, मतलब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमें पता नहीं होता, तो लेजर भी नहीं बना पाते, क्योंकि हमें मेटास्टेबल स्टेट के बारे में पता ही नहीं होता। ठीक है, सो द क्वांटम मैकेनिक्स और सिंपली द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटास्टेबल स्टेट, और इन अदर सेंस फॉर द लेजर, प्रोडक्शन ऑफ लेजर। ठीक है। अच्छा, जो एटॉमिक, ये तुम्हें ये पता होगा कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कम किया तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और जीरो टेम्परेचर करते हैं तो क्या वो वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएंगे? क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स वाइब्रेट करना बंद कर देंगे? प्रीमा फेसी तो ऐसा लगता है हाँ, बट नो, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है इसी के, यही रेस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए कि वो एटॉमिक जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं वो जीरो एनर्जी जिनकी नहीं हो सकती, वो वाइब्रेट करना बंद नहीं कर सकते इवन एट 0 केल्विन। ठीक है, इसी तरह से इसकी हेल्प से हम बोर ऑर्बिट इसका करेक्ट एस्टिमेट बता सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर फ्यू प्रेडिक्शंस बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिससे हमें भरोसा हो जाए कि हाँ, दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज ट्रू, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सर 0 केल्विन कर सकते हैं हम अभी तक? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं कर पाए, 10⁻⁹ तक तो हम लोग पहुंचे हैं, हम नहीं, उससे भी ज्यादा पहुंचे हैं, मैंने 10⁻⁹ तक ही देखा है। ठीक है, और उस 0 तक तो नहीं पहुंच पाए। ओके, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते यस। हैं, अगर सब कुछ क्लियर है तो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्वेश्चंस पूछो इस पर, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकली इसे ऑब्जर्व करो, जो मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकली सुनो और पढ़ो, और तुम मुझसे पूछो क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम की कोई बात नहीं। अच्छा चलो, क्योंकि ये लास्ट यूनिट है इसलिए टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये दोनों प्रिंसिपल्स ट्रू हैं, कौन कौन से? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ड्यूअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जब दोनों एक साथ मैच करते हैं तब क्या होगा? एक हमने देखा भी कि जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं उससे पता पड़ता है कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली। इसका मतलब मोमेंटम में एक स्प्रेड होगा डेल्टा पी। इसी तरह से मैटर वेव में हमने पढ़ा कि अगर मोमेंटम हमें पता है तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं,
और अब अगर इन दोनों को मैच कर दिया जाए तो वेवलेंथ भी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट टेल दैट ए पार्टिकल ऑफ दिस मोमेंटम हैज दिस वेवलेंथ. तो वेवलेंथ में एक स्प्रेड होगा, ठीक है. और अगर वेवलेंथ में स्प्रेड होगा तो हमें बोलना पड़ेगा विद अ सिंगल पार्टिकल वी कैन एसोसिएट अ नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स, एंड सो those number of de Broglie waves associated with a single particle will interfere and will make a group of waves. ठीक है, चलो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वेव ग्रुप के बारे में. इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेव, डी ब्रॉगली वेव को कैसे डिफाइन करें, उसकी स्पीड क्या होती है. ठीक है, तो उसके लिए जो भी वेव नेचर, वेव थ्योरी हमने पढ़ी थी वो सब कुछ अप्लाई होती है, सब कुछ. ठीक है, ये रियल वेव हो या ना हो, वो सारी वेव की थ्योरी अप्लाई होती है. क्या कि वेव की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव, y इक्वल टू सम कुछ साइन कॉस कैसे करके कुछ था ना, कोई बताएगा. y इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ व्हाट, बताओ भाई अगर याद हो तो. kx minus omega t. यस, ठीक है, तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx. ठीक, सो दिस इज द सर ये तो मैकेनिकल वेव के लिए ली थी हमने. नहीं, ये हमने वेव के लिए लिया था, और क्योंकि हमने उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी तो लिया था. तो मैकेनिकल वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कुछ भी ऐसा फंक्शन जो टाइम के साथ अपने आप को रिपीट करता है, उसके लिए ये एप्लीकेबल है, ऑसिलेटिंग फंक्शंस के लिए. तो बाय चांस जो वेव है वो वेव में भी कुछ ऑसिलेट करता है, इसलिए ये वेव के लिए भी एप्लीकेबल है. तो हमने ये वेव के लिए ड्राइव नहीं किया था, ये ड्राइव किया था एक ऑसिलेटरी सिस्टम के लिए, ऑसिलेटरी मैकेनिज्म के लिए, और इसीलिए वो वेव के लिए भी एप्लीकेबल था. तो जहां पर भी वेव नाम का कुछ आ गया वहां पर ये एप्लीकेबल है. ठीक है, सर इसमें पार्टिकल कैसे आएगा? हाँ वो हमें देखना है, वो हमें देखना है कैसे आएगा. फिलहाल हम वेव की बात कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे पार्टिकल को भी ले आएंगे, अभी लाते हैं. अच्छा लगेगा देखकर. ठीक है, तो चलो पहले हम वेव की बात करते हैं. तो वेव है ये, इसे या तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एंड दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव. और वेलोसिटी ऑफ, अच्छा उस पर भी साइन के अंदर जो भी ये एंगल है ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, दिस इज नोन एज फेज एंगल. फेज पता है क्या होती है, फेज इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन के कोई कि हम जो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वेव में वो किस पोजीशन पर है. ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में भी फेज को बता सकते हैं. पाई 2 पाई के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं, किसी भी तरीके से बताया जा सकता है फेज को. सो दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ फेज, फेज एंगल. ठीक है, फेज एंगल उसे फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो अच्छा जरा एक काम करते हैं, अच्छा वी तो पता है ना क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव. तो बात करते हैं, अगर हमारे पास एक वेव है, ये कुछ वेव्स हैं, उसकी वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे. ये वाला पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ वेव, राइट. ये वाला पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ वेव, है ना. और इन सारे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इसमें हमेशा सेंटर पर है, या फिर इसकी फेज चेंज नहीं हो रही, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी फेज चेंज नहीं हो रही, एक सेम फेज में है. तो स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड बाय द स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन द वेव, द फेज ऑफ विच इज कांस्टेंट विद टाइम. एम आई राइट. तो अगर कांस्टेंट फेज वाला पॉइंट हम पकड़ लें वेव में, और ये देखें वो कांस्टेंट फेज वाला पॉइंट किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ वेव. और वो ये v होनी चाहिए, क्योंकि इससे v को भी हमने ये स्पीड ऑफ वेव ही बोला है. एम आई राइट, ये बात क्लियर है. यस सर. Yes sir. ठीक, तो अगर ऐसा है तो कांस्टेंट फेज का मतलब क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट. ये जो फेज एंगल है, ये फेज एंगल इसके लिए चेंज नहीं हो रहा होगा, या फिर इस फेज एंगल का अगर टाइम डेरिवेटिव ले लें, दैट शुड बी 0 फॉर दैट पॉइंट. ठीक, तो चलो लेते हैं इस फेज एंगल का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं. टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये आया ओमेगा टी का 1 और x अपॉन v के लिए 1/v dx ओवर dt, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही थी, कांस्टेंट थी, इसलिए x चेंज हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो इसकी हेल्प से क्या v बता सकते हो, v इज व्हाट, v इज dx ओवर dt. अच्छा और यहाँ से क्या आएगा dx ओवर dt,
यहाँ से dx over dt का वैल्यू आएगी ओमेगा बाय k. So omega and k can give you the velocity of the wave. और ये वेव की वेलोसिटी कैसे निकाली है? बाय यूजिंग अ कांस्टेंट फेज पार्टिकल. और इसीलिए इस वेलोसिटी को नेम जो दिया गया है दैट नेम इज फेज वेलोसिटी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं vp से, p फॉर फेज. ठीक है, तो फेज वेलोसिटी इज द रेशो ऑफ ओमेगा एंड के फॉर अ गिवन वेव. तो जब भी वेव की बात आती है हम फेज वेलोसिटी बात करते हैं. ठीक है, अभी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसे इस पूरे डिस्कशन के बीच में डिराइव करा दिया. तो अभी यहाँ तक रखते हैं. इज दैट फाइन? ओके सर.